Hello students, we will start with now what conics. What is definition of conics? If a line is given which is fixed, a point is given which is also fixed. The fixed point is called focus, fixed line is called what? Directrix. If you consider p, x, comma, y, any point, okay, in this plane, join S to P. Draw PM perpendicular to what? The fixed line, which is called what? Directrix. Now, if this ratio SP upon PM, this is equal to constant, which is denoted by what? E, then this will represent what? A conic. What is a conic? Locus of points, the distance from the fixed point and to the perpendicular distance from the fixed line. What is a locus? The ratio of the distance of the fixed point to the perpendicular distance from the fixed line. If this ratio is constant, it will represent what? A conic. The ratio is called what? Focus directrix property. The ratio is called what? Focus directrix property. S is the fixed point which is called what? Focus. D is the fixed line called what? Directrix. And E is the ratio which is called what? Eccentricity. Definition: locus of point such that the ratio of the distance from the given fixed point to the perpendicular distance from the given fixed line. If the ratio is constant, then it will represent what? A conic. And if E is equal to 1, the conic represents a parabola. If E is less than 1, it will represent what? Ellipse. If E is greater than 1, it will represent what? Hyperbola. And if E is 0, it will be what? A circle. If E is 0, it will be what? A circle. Now अभी हम लोग आज करेंगे पैराबोला. पैराबोला के लिए आपकी प्रॉपर्टी क्या है? E is equal to how much? E is equal to 1. मतलब SP is equal to what? PM. Okay. SP is equal to PM. Now standard parabola, y axis, x axis. स्टैंडर्ड पैराबोला आपका ऐसा रहता है, इसका इक्वेशन रहता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. स्टैंडर्ड पैराबोला इक्वेशन इज व्हाट? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. नाउ वेयर द कोनिक इज सिमेट्रिकल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सिस. व्हाट इज द एक्सिस? एक्सिस इज अ लाइन अबाउट विच द कोनिक, दिस कोनिक इज व्हाट? Symmetrical. This is symmetrical about x-axis. So x-axis is what? The axis. Vertex is the point where the conic cuts the axis. ये जो point है इधर 0 0 है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Vertex. Okay. This is the focus. अगर आपको याद रहेगा तो which is fixed, and this is what? The directrix, which is also what? Fixed. ठीक है. S is the point which is focus. D is the line which is what? Directrix. Any chord which is passing through the focus, this is called what? Focal chord. ये सबके लिए है definition. But a chord which is focal chord which is perpendicular to the axis, it is called what? Latus rectum. Okay. एनी कॉर्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, जो फोकस से पास नहीं होता है, उसका नाम है डबल ऑर्डिनेट. एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन द कोनिक फ्रॉम द फोकस, ये सब डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल डिस्टेंस.
also called as focal radius, also called as focal radius, focal distance. ठीक है, it is called as what? Focal radius, distance of the point on the conic from the focus. This is called what? Focal distance. It is also called as what? Focal radius. It is also called as what? Focal length. अगर उन्होंने पूछा कि फोकल लेंथ फाइंड करना है तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन द कोनिक फ्रॉम द focus, this is what? This is also focal distance, 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 distance of the point on the conic from the focus. ये सब definitions is same for ellipse, hyperbola and parabola. Axis is a line about which the conic is symmetrical. Vertex is the point where the conic cuts the axis. A chord passing through the focus is called what? Focal chord. If that focal chord is perpendicular, it is called what? Latus rectum. Any chord perpendicular to the axis is called what? Double ordinate. And distance of the point on the conic from the focus, this all are what? Focal length, or also it is called as what? Focal distance, focal radius. और एक बार लास्ट बार, axis is a line about which the conic is symmetrical. Vertex is the point where the conic cuts the axis. A chord passing through the focus is called focal chord. If that focal chord is perpendicular to the axis, it is called latus rectum. Any chord perpendicular to the axis is called double ordinate. Distance of the point on the conic from the focus is called what? Focal length, focal radius, or focal distance. Now standard parabola. What is equation of standard parabola? स्टैंडर्ड पैराबोला का इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. ओके, एंड और एक इसके साथ ही है y स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? -4ax. नाउ y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये आपका फिक्स लाइन हो गया. डी y square equal to 4ax. This is a parabola which is symmetrical about x-axis, but this is in which quadrant? First and fourth quadrant. ठीक है, फोकस हमेशा अंदर रहता है, याद रखिए. पैराबोला के अंदर फोकस के कोऑर्डिनेट्स रहते हैं a0. वर्टेक्स कितना है? 0 0. लेटस रेक्टम क्या रहता है? फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस. ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स रहते हैं a,2a और a,-2a. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या रहता है? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स रहता है x प्लस a इज इक्वल टू 0. सी x कोऑर्डिनेट है, x प्लस a इक्वल टू 0. ठीक है, व्हाट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस? a0. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है? x प्लस a इक्वल टू 0. कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स क्या है? 0 0. एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम क्या है? a,-2a एंड a,-2a. एक्स एक्सिस ये आपका एक्सिस है. व्हाट इज इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस? y इज इक्वल टू 0. इसमें बचा है आपका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, वो कितना हो जाएगा? 4a. बिकॉज ये लेंथ कितना है? 2a. ये लेंथ कितना है? 2a. 2a प्लस 2a कितना हो गया? 4a. फोकल लेंथ fl लिखता हूं. फोकल लेंथ ऑफ पॉइंट px1, y1, दिस इज गिवन बाय a प्लस x1. और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स रहते हैं x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280. x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280. ये सब आपको याद रखना है. अगर माइनस रहेगा तो दिस विल बी इन विच क्वाड्रेंट? सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट. आपका पैराबोला चेंज हो जाएगा. ओके, आपका पैराबोला चेंज हो जाएगा. इट विल बी वेयर? इन सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट. ये आपको मिल गया क्या? डायरेक्ट्रिक्स. आपका ये पैराबोला ऐसा घूमता है. ठीक है, तो इसमें आपका फोकस में से जो पास होगा उसको हम क्या बोलेंगे? लेटस रेक्टम.
वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कितने हैं 0 0। इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या है सेम y इक्वल टू 0। फोकस ये नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सेस है -a0। ये कितना हो जाएगा x माइनस ए इक्वल टू 0। थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस। झेप रहा है क्या? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम सेम रहने वाला है, इट इज हाउ मच 4a। फोकल लेंथ जो है ये मैं यहाँ ही लिखता हूँ, फोकल लेंथ आपका कितना हो जाएगा a माइनस x1। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स आपके क्या हो जाएंगे, x इज -80² एंड y इज 280। भैया पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या रहते हैं, ये जो किसको सेटिस्फाई करते हैं, इसको सेटिस्फाई करते हैं। आप अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a² t², और ये माइनस डालेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या मिलेगा 4a² t²। याद रखिए पैरामीटर फाइंड करने के लिए हमेशा हम y कोऑर्डिनेट यूज करेंगे। पैरामीटर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट यूज करेंगे तो आपको t² की वैल्यू मिलेगी, तो दो वैल्यूज मिलेगी। तो इधर पैरामीटर फाइंड करने के लिए कौन सा कोऑर्डिनेट हम लोग कंसीडर करेंगे, y कोऑर्डिनेट। 2a t आया था CET 2018 में, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द पॉइंट दिया था, तो कंसीडर y कोऑर्डिनेट। प्लीज रिमेंबर कंसीडर व्हाट, y coordinate। y square equal to 4ax, standard parabola in which quadrant, first and fourth quadrant। coordinates of focus a0, equation of directrix x plus a equal to 0। coordinates of endpoints of latest rectum a 2a, a minus 2a। coordinates of vertex 0 0, equation of axis is y equal to 0। length of latest rectum more a, focal length is a plus x coordinate, and parametric equations 80² comma 280। but if it is minus, coordinates of focus minus a0, coordinates of vertex 0 0, equation of directrix x minus a equal to 0। end points of latest rectum ये देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a, फोकल लेंथ इज a माइनस x1 एंड दिस इज -80² कॉमा 280। जो भी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स रहते हैं वो इसको क्या करते हैं, सेटिस्फाई। और दो पैराबोला है जो सिमेट्रिकल अबाउट क्या है, which is symmetrical about y-axis। x square is equal to 4by and x square is equal to minus 4by। x square is equal to 4by and y square is x square is equal to minus 4by। इसमें जो आपका डायरेक्ट्रिक्स रहता है वो इसको क्या रहता है, पैरेलल रहता है, आपका पैराबोला ऊपर आता है ऐसा। इन विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, इट इज व्हाट, इट इज ओपनिंग अपवर्ड्स। ये हो गया आपका लेटस रेक्टम एल एल डैश। वर्टेक्स आपको दिख रहा है 0 0। इक्वेशन ऑफ एक्सिस कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 0। कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स कितना हो, सॉरी फोकस हो जाएगा 0b। ये लाइन पैरेलल टू क्या है, y एक्सिस। x एक्सिस को पैरेलल। इक्वेशन क्या रहता है, y इज इक्वल टू कांस्टेंट, y इज इक्वल टू कांस्टेंट, y प्लस b इज इक्वल टू 0। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना हो जाएगा 4b। फोकल लेंथ ऑफ पॉइंट px1 comma y1, this will become how much, b plus y1। याद रखिए। एंड पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स आपके क्या हो जाएगा, x इक्वल टू BT², नहीं उल्टा हो जाएगा ना भाई, x इज इक्वल टू, x के जगह पे y और y के जगह पे x इक्वल टू 2BT और y इज इक्वल टू BT²। वापिस बड़बड़ कर रहा हूँ, ये क्या करना चाहिए, इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब देखिए ये सेटिस्फाई करता है इसको, 2BT और BT²। अगर ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट एंड सेकंड। ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड एंड फोर्थ। ये पैराबोला आप देखिए ये किधर रहने वाला है, ये रहेगा सिमेट्रिकल नीचू को। ये है आपका डायरेक्ट्रिक्स D। पैराबोला आपका आ जाएगा ऐसा, ठीक है। ये रहेगा आपका फोकल लेटस रेक्टम, सॉरी,
ये है आपका L, ये है आपका L डैश, इसके ऊपर रहेगा फोकस 0 कॉमा माइनस बी, इक्वेशन आएगा y माइनस बी इक्वल टू 0, वर्टेक्स रहेगा 0 0, इक्वेशन ऑफ एक्सिस रहेगा x इज इक्वल टू 0, व्हाट विल बी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इट विल बी सेम, फोकल लेंथ आपका चेंज हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका b माइनस y1, और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स आपको दिख रहा है, क्या चेंज होने वाला है, साइन y का साइन चेंज हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस बी टी स्क्वायर। टिंग टिंग टिंग, ये चारों याद रखो, आपको पूरे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे पैराबोला में। ठीक है, समझ रहे हैं क्या 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 बड़बड़ कर रहा हूं मैं। 4 पैराबोलाज, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax डॉट 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 डॉट। सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स करेंगे पहले। Find everything for the parabola, for example y square equal to 20x लिया, इसको क्या करेंगे, कंपेयर विथ क्या करेंगे, y square is equal to 4ax। आपके दिमाग में इमीडिएटली आना चाहिए ये अपना पैराबोला ऐसा है, तो मोरे इक्वल टू 20, तो a इक्वल टू 5। What will be coordinates of vertex, इसमें coordinates of vertex है 0 0। What is coordinates of focus, a comma 0 मतलब 5 comma 0। What is equation of directrix, equation of directrix is what, x plus a is equal to 0। What is length of latus rectum, length of latus rectum is more, which is how much, 20। What is equation of axis, axis is the x-axis, equation will become what, y equal to 0। अगर प्रॉब्लम दिया है आपको फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16y, तो इसको अगर आप कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4by, सो b कितना आ रहा है आपका 4, जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो पैराबोला ड्रॉ कर दो, आपको सब समझ जाएगा। आपका s किधर आ रहा है, वर्टेक्स का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है 0 0। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस क्या रहने वाला है, देखिए ये नीचे नेगेटिव y एक्सिस 0 कॉमा माइनस बी। व्हाट विल बी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, y इक्वल टू कांस्टेंट, y इक्वल टू माइनस 4, करेक्ट, y minus 4 is equal to 0। Length of latus rectum will be 16, and what will be equation of axis, axis ये y axis है मतलब x is equal to 0। ऐसे आप स्टैंडर्ड फाइंड कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ इट इज नॉट द स्टैंडर्ड पैराबोला, अभी मैं आपको फॉर्मूला देता हूं, फाइंड द लेंथ of the latus rectum of the parabola। क्या बड़बड़ कर रहा हूं, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला। अगर पैराबोला आपका फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, ओके, length of latus rectum is nothing but coefficient of y upon coefficient of x square, coefficient of y upon coefficient of x square। ये x square है तो x square वाला नीचे आने वाला है। अगर आपका उल्टा है, फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज ए वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाई प्लस डी इक्वल टू 0, what will be your length of the latus rectum, it will be coefficient of x whole upon coefficient of y square। फॉर्मूला याद रखिए, आपका सब कुछ हो जाएगा। लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, कोई भी प्रॉब्लम दिया है आप फटाफट 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 ओरली सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल
find the length of the latest rectum. X square minus 4x minus 8y plus 12 equal to 0. What will be length of the latest rectum? ये x square है तो y के बाजू वाला पहले लेना है आपको. x square रहेगा तो y के बाजू वाला. It will be minus 8 upon 1. This is equal to 8. लेंथ हमेशा पॉजिटिव, इसलिए मैंने क्या डाला है? मॉड्यूलस. इसको कुछ भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. 3x square minus 3x minus y plus 6 is equal to 0. What will be length of the latest rectum? x square रहेगा तो y के बाजू वाला पहला लेना है. याद रखिए, x square रहेगा तो y के बाजू वाला कितना है? -1 upon x square. This will become how much? 1 upon 3. झेप रहा है क्या? फॉर एग्जाम्पल और एक 4y square minus 6x minus 4y plus 5 is equal to 0. y square है तो x के बाजू वाला पहला आने वाला है. x के बाजू वाला कितना है? -6 upon 4. तो दिस विल बिकम हाउ मच? 3/2. जेपा हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ द एक्सेस. जो भी दिया है आपको, अगर वाई स्क्वायर दिया है तो एक्स के बाजू वाला अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर. ये एक्स स्क्वायर है तो वाई के बाजू वाला अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. इधर एक्स स्क्वायर है, वाई के बाजू वाला अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. फॉर्मूला दिया है, समझा तो वेरी गुड, नहीं समझा तो वेरी वेरी गुड. नेक्स्ट मैं आपको दे रहा हूं टू फाइंड इक्वेशन ऑफ द एक्सिस. To find equation of the axis of a parabola. To find equation of the axis of the parabola, ax square plus bx plus cy plus d equal to 0. अगर आपको एक्सेस पूछा है, डिफरेंशिएट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग और ट्रीटिंग वाई कांस्टेंट. ट्रीटिंग y कांस्टेंट. ओके. और अगर आपको इक्वेशन दिया है ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y ट्रीटिंग x कांस्टेंट. आपको इक्वेशन ऑफ क्या मिल जाएगा? इक्वेशन ऑफ एक्सेस मिल जाएगा. ठीक है. क्या बोल रहा है बुड्ढा? अरे भाई प्रॉब्लम देखना. फॉर एग्जांपल हम वो ही लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 12 इज इक्वल टू 0. फाइंड व्हाट? इक्वेशन ऑफ एक्सेस. डिफरेंशिएट करो किससे? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से. कितना मिलेगा? 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. y को हम क्या लेते हैं? कांस्टेंट. इसका आएगा 0, इसका भी आएगा 0. तो x इक्वल टू 2. टिंग 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 चिंदी. फॉर एग्जाम्पल 4y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0. ये y स्क्वायर है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? y. कितना हो जाएगा? 8y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. अबे x को कांस्टेंट लिया है तो y कितना हो जाएगा? हाफ. झेपा क्या? दिस आर व्हाट? इक्वेशन ऑफ द एक्सेस. कोई भी इक्वेशन दिया है, टिंग 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 टिंग. फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस y प्लस 6 इज इक्वल टू 0. इसको किससे डिफरेंशिएट करूंगा मैं? x से. x स्क्वायर रहेगा तो x से, y स्क्वायर रहेगा तो y से. 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू 1. जेपा हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ द एक्सिस, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. अगर x स्क्वायर रहेगा तो ट्रीटिंग y कांस्टेंट, और अगर y स्क्वायर रहेगा तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x कांस्टेंट. नेक्स्ट इज टिंग टिंग टिंग. शॉर्टकट्स बता रहा हूं मैं आपको. समझ रहा है तो वेरी गुड, नहीं समझ रहा है तो वेरी वेरी गुड. टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स. To find coordinates of the vertex h, k जो 0 0 रहता है. ओके. अगर इक्वेशन रहेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस cy प्लस d इज इक्वल टू 0, इसको करना है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ट्रीटिंग y कांस्टेंट. तो आपको इससे क्या मिल जाएगा? x मिल जाएगा. ये x का जो भी है कोऑर्डिनेट वो रहता है h. इफ यू सब्स्टिट्यूट दिस इन द गिवन इक्वेशन यू विल गेट y which will be nothing but what?
के। क्या बोल रहा है बुड्ढा? बुड्ढा ये बोल रहा है कि अगर इक्वेशन दिया है आपको, अगर दिया है सपोज पी वाई स्क्वायर प्लस क्यू वाई प्लस आर एक्स प्लस एस इज इक्वल टू 0, डिफरेंशिएट किससे करना है आपको? विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ट्रीटिंग एक्स कांस्टेंट। ये जो करते हैं आपको क्या मिलता है? इक्वेशन ऑफ द एक्सिस। तो आपको y मिल जाएगा विच इज नथिंग बट व्हाट, उसको हम k डिनोट करते हैं। दिस यू सब्सटीट्यूट इन द गिवन इक्वेशन, आपको x मिल जाएगा विच इज व्हाट, h। और h कॉमा k क्या है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ vertex. What is this? Coordinates of vertex. For example, find the coordinates of the vertex of, coordinates of the vertex of the parabola. First लेता हूं मैं, सपोज ले लिया है 3x² माइनस 6x माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको मैं किससे डिफरेंशिएट करूंगा? मैं x से डिफरेंशिएट करूंगा। कितना आ जाएगा? 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, मतलब मुझे मिल गया h। x इक्वल टू 1 इधर डाल दिया, कितना आ जाएगा? 3 माइनस 6 माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0, y कितना हो गया आपका? 3। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स कितना हो गया? 1,3। झेपा क्या? ये रहता है h और k। नहीं समझा है? वेरी वेरी गुड। और एक लेते हैं, समझा तो अच्छी बात है, नहीं समझा तो और अच्छी बात है। x² माइनस 2x माइनस 1/3y प्लस 2 इक्वल टू 0। वापिस x² है तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, वेरी गुड। x इज इक्वल टू 1, ये x इक्वल टू 1 हम इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे। 1 माइनस 2 माइनस 1/3y प्लस 2 इक्वल टू 0, इसका हो गया हैप्पी बर्थडे। 1 इक्वल टू 1/3y, तो 1 y इज ऑल्सो इक्वल टू 1। व्हाट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स? 1,1। झेपा क्या? ऐसे वड्डे वड्डे इक्वेशन रहेगा तो आप क्या फाइंड कर सकते हैं? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स। नेक्स्ट फाइंड करेंगे coordinates of focus and equation of directrix. Coordinates of focus and equation of directrix. अभी फिर से आपके दो इक्वेशंस अगर रहेगा आपका ax² प्लस bx प्लस cy प्लस d इज इक्वल टू 0, ठीक है? तो इसमें आपका कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस क्या आता है? इसको अपना वर्टेक्स के लिए आप किससे डिफरेंशिएट करते हैं? x से। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस रहता है h प्लस a कॉमा k एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स रहता है x इज इक्वल टू h माइनस a। क्या बोल रहा है बुड्ढा? बुड्ढा आपको समझाता है, डायरेक्टली मिल जाएगा। अगर इक्वेशन रहेगा px² प्लस px² नहीं py² लेते ना, py² प्लस qy प्लस rx प्लस s इज इक्वल टू 0, दिस इज व्हाट इन टर्म्स ऑफ y²। तो फोकस आपका कितना आएगा? h कॉमा k प्लस a। okay, and what will be equation of directrix? y is equal to k minus a। झेप रहा है क्या? y is equal to k minus a, ये आप याद रखिए। और अभी आपको a फाइंड करना है। a कैसे फाइंड करते हैं? आपका जो लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम रहता है, व्हाट इज लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम? अगर ये x² रहेगा तो लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम जो रहता है वो क्या आ जाएगा? कोइफिशिएंट ऑफ y अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ x²। ये जो रहता है दिस इज माइनस मोर है, याद रखिए। ओके, दिस इज विल बी माइनस मोर है। दिस इज व्हाट? कोइफिशिएंट ऑफ x अपॉन
कोइफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। जो भी आप लेंथ फाइंड करते हो वो क्या रहता है, माइनस मोर ए। जो भी लेंथ फाइंड करते हो वो क्या रहता है, माइनस मोरे। क्या बोल रहा है, प्रॉब्लम्स करता हूं, टेंशन मत लीजिए, प्रॉब्लम्स करता हूं। फॉर एग्जाम्पल 3x² माइनस 6x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी आपको क्या फाइंड करना है, आपको पहला फाइंड करना है -4a। मतलब a फाइंड होता है, ये एक्स स्क्वायर है तो y के बाजू वाला लेना है और एक्स स्क्वायर के बाजू वाला लेना है। तो आपका a इसमें कितना आ गया है, 1/3। ठीक है, झेपा के आपको मैंने क्या किया है, a कैसा फाइंड करते हैं, ये जो भी रहता है, ये एक्स स्क्वायर है तो -4/3, तो दैट विल बिकम a इज हाउ मच, 1/3। और आपको अभी h फाइंड करना है, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिल जाएगा आपको, 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, मीन्स आपका x कितना हो गया, 1, मतलब h इज 1। 1 इसमें डाल के सब्सटीट्यूट किया, 3 माइनस 6 माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस 6 माइनस 3 प्लस 5 हो जाएगा 2, 2 उधर चला गया, y मिल जाएगा आपको हाफ। सब्सटीट्यूट किया रे, सिर्फ x इज इक्वल टू 1 डाला, 3 माइनस 6 माइनस 4y प्लस 5, 3 प्लस 5 8, 8 माइनस 6 कितना हो गया 2 इक्वल टू 4y, तो y विल बी 2/4 विच इज हाफ। एक बार आपको ये सब मिल गया तो फोकस मिल जाएगा। आपका फोकस का कोऑर्डिनेट क्या रहता है, ये एक्स स्क्वायर रहता है, एक्स स्क्वायर रहेगा तो कितना रहता है, h कॉमा k प्लस ए, करेक्ट ना। ओ माय गॉड, उल्टा लिखा है ना ये, क्योंकि ये ax² प्लस bx प्लस cy प्लस d इक्वल टू 0 है ना। ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर में आपका चेंज क्या होने वाला है, ये y चेंज होने वाला है, ये आपने लिखा है उल्टा। प्लीज रिमेंबर, ये हो गया है उल्टा, उल्टा मत कीजिए, वाट लग जाएगी आपकी। यहाँ कितना आएगा, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता, h, और ये कितना हो जाएगा k प्लस ए, करेक्ट ना। इसमें y इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहता है, डायरेक्ट्रिक्स कैसा रहता है, ऊपर रहता है ना। डायरेक्ट्रिक्स इसमें कैसा रहता है, ये पैराबोला ऐसा रहता है, तो डायरेक्ट्रिक्स इसको पैरेलल रहता है एक्स एक्सिस को, तो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा। इसका फोकस कितना आएगा, h प्लस ए कॉमा के। ओके, एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इसका आएगा x इज इक्वल टू एच माइनस ए। अच्छा हो गया, प्रॉब्लम किया तो मेरे को समझ गया, उल्टा मत लिखिए। फोकस इज h कॉमा k प्लस ए। तो यहाँ कितना आएगा, ये आपका एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है तो इसका फोकस क्या आएगा, h कॉमा k प्लस ए। आपका h कितना है 1, k कितना है हाफ, a कितना है 1/3, तो ये कितना आ जाएगा 1,5/6। नो टेंशन, और एक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फाइंड फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स फॉर द इक्वेशन 4y² माइनस 6x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो आपका क्या आने वाला है, ये आपको मिलेगा माइनस मोर ए इज इक्वल, ये y² है तो -6/4। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका a कितना हो जाएगा 3/8। झेपा कह रहे, देखना ये हो जाएगा 2 से, ये हो जाएगा 3 से, 2 नीचे आ गया। अभी इसको हम करेंगे डिफरेंशिएट, किससे, विथ रिस्पेक्ट टू y से। y से किया तो आपको कितना मिलेगा 8y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो y हो गया आपका हाफ। y इक्वल टू हाफ हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, y इक्वल टू हाफ इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे। 4 इंटू हाफ स्क्वायर मतलब 1/4 माइनस 6x माइनस 4 इंटू हाफ प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, करेक्ट। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 5 विल बी 4, तो 6x इक्वल टू 4, तो x विल बिकम हाउ मच 2/3।
एक बार h मिल गया, k मिल गया। अभी आपका इसमें फोकस का कोऑर्डिनेट्स क्या रहता है? इसमें फोकस आपका रहता है h प्लस ए कॉमा के। फोकस क्या रहता है? h प्लस ए कॉमा के। h मालूम है, a मालूम है, सब्सटीट्यूट कर दीजिए। एंड व्हाट विल बी इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स? इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स विल बी x इज इक्वल टू h माइनस ए। h मालूम है, a मालूम है, सब्सटीट्यूट कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। झिप रहा है कि आपको मैं क्या कर रहा हूँ? ओके। नाउ एक प्रॉब्लम लेते हैं जिसमें हम लोग सब कुछ फाइंड करते हैं, ठीक है? लेंथ ऑफ द लेटर्स, एवरीथिंग, वी विल फाइंड एवरीथिंग जो शॉर्टकट मेथड्स दिया है, एक एक करके करेंगे। फॉर एग्जांपल इक्वेशन लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। आपका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम रहता है -4a विच विल बी, एक्स स्क्वायर है तो y के बाजू वाला मतलब -3, करेक्ट ना? एक्स स्क्वायर है तो y के बाजू वाला हम ले रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3y प्लस 10। तो y के बाजू वाला -3 और एक्स स्क्वायर के बाजू वाला 1, तो ये हो जाएगा -3, करेक्ट? मतलब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम तो मॉड लेते हैं 3 आ जाएगा आपका, और आपको a कितना मिलेगा? a मिलेगा 3/4। देखना, माइनस मोरे इज -3, तो a कितना हो गया आपका? 3/4। हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, किससे करना पड़ेगा? विथ रिस्पेक्ट टू x, ट्रीटिंग y कांस्टेंट। इससे आपको क्या मिल जाएगा? इक्वेशन ऑफ द एक्सिस। एक्स स्क्वायर से डिफरेंशिएट, 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x कितना हो गया? 2। दिस इज व्हाट? इक्वेशन ऑफ द एक्सिस। अभी हम क्या करते हैं? अभी हम ये x इक्वल टू 2, मतलब आपको h मिल गया है 2, ये किस में सब्सटीट्यूट करते हैं? इसमें। ये कितना हो जाएगा? 4 माइनस 4 2 ज़ा 8 माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 4 माइनस 8 माइनस 4 प्लस 10 विल बी 6, सो y विल बी हाउ मच? 2। मतलब आपका k भी कितना आ गया? 2। अबे 4 माइनस 8 माइनस 4 प्लस 10 हो गया 6, 3y गया उधर, 3y इक्वल टू 6, मतलब y कितना हो गया आपका? 2। तो आपको मिल गया है a इज 3/4, h इज 2 और k इज 2। आपका इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर है तो आपका पैराबोला ऊपर रहने वाला है, तो y कोऑर्डिनेट चेंज होगा। आपका फोकस क्या रहने वाला है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस h कॉमा k प्लस ए। h कितना है आपका? 2। k कितना है आपका? 2 प्लस 3/4, तो ये कितना आ जाएगा? 2 कॉमा 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 3 11/4। what will be equation of the directrix? Equation of the directrix will be y equal to k minus a, y coordinate है, y equal to k minus a, y is equal to k है 2, a है 3/4, तो y कितना होगा? 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस 3 कितना होगा? 5, तो y will be how much? 5/4। कुछ भी एक पूछने वाले हैं आपको, क्या पूछने वाले हैं आपको? कुछ भी एक पूछते। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, फाइंड द लेंथ ऑफ एक्स स्क्वायर रहेगा तो y के बाजू वाला अपॉन एक्स स्क्वायर के बाजू वाला, y के बाजू वाला अपॉन एक्स स्क्वायर के बाजू वाला। इक्वेशन ऑफ द एक्सेस पूछा है तो डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x ट्रीटिंग y कांस्टेंट। अगर y स्क्वायर रहेगा तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y ट्रीटिंग x कांस्टेंट, ठीक है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स पूछा है तो डिफरेंशिएट करके x मतलब h मिल गया, और ये h x का वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट किया तो y का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस क्या रहता है? एक्स स्क्वायर रहेगा तो x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता है, h k प्लस ए, एंड k प्लस ए का डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या आएगा? y इक्वल टू k माइनस ए। अगर y स्क्वायर रहेगा तो क्या आता है? h प्लस ए कॉमा के, h प्लस ए कॉमा कि ये क्या हो जाएगा? फोकस का कोऑर्डिनेट्स, और ये माइनस डाल दिया। व्हाट विल बी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स? x इज इक्वल टू h माइनस ए, x इज इक्वल टू
h माइनस ए। ओके, तो मैंने ये स्टैंडर्ड वाले को नहीं बोला है आपको, ये नॉन स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इससे आप सब कुछ फाइंड कर सकते हो। लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, कोऑर्डिनेट्स ऑफ व्हाट, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स, इक्वेशन ऑफ द एक्सिस, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। टिंग टिंग टी टिंग। थैंक यू वेरी मच। हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विथ मोर प्रॉब्लम्स ऑन व्हाट, पैराबोला। थैंक यू वेरी मच।